So let us start. Very briefly, I will just give the introduction, and after that I would like you to participate, because revision is not to be done by me. Revision is should be there from your side. You have to tell. ठीक? तो supply का in general, supply in economics means the quantity which is offered for sale by a seller at a given price and at a given point of time in a given market. Single commodity, not all the commodities. मतलब कोई भी एक चीज which is offered for sale by the seller. And then there is another term, stock means the total quantity of any commodity lying with the seller at any time. Lying with the seller, जो कुछ भी उसके पास पड़ा हुआ है, that is called stock. But out of that stock, whatever he brings forward for sale, सामने जो रखता है बेचने के लिए, हो सकता है he may be having 10 kg of anything, मान लो शुगर, तो उसमें से he is ready to sell only 4 kgs of sugar. तो 4 kg will be called supply, and rest 6 kg which are lying in the godown or in his warehouse, that will be called stock. ठीक है. उसके बाद है कि supply is of two types. One is called individual supply, one is called market supply. Individual supply मतलब supply made by single seller. Seller या firm या producer या supplier, one and the same thing. बेचने वाला. ठीक. And market supply मतलब supply of a commodity made by all the sellers in the market. जितने भी हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी sellers हैं, उनका addition कर दें, then it is called market supply. That means quantity of a commodity which is offered for sale by all the sellers at a given पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट. ठीक है. उसके बाद किया था हमने कि सप्लाई शेड्यूल. अगर सप्लाई दो तरह की है तो ऑब्वियसली सप्लाई शेड्यूल भी 2 टाइप्स का होगा. शेड्यूल मीन्स टेबल. कौन सा टेबल? दैट टेबल विच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. तो वन इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड वन इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल. ठीक है. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब सप्लाई टेबल ऑफ ए सिंगल सेलर, एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब सप्लाई शेड्यूल ऑफ होल ऑफ द मार्केट. फिर इसी तरह से कर्व्स भी 2 टाइप्स की हो जाएंगी, जैसे डिमांड में किया था सेम वे 2 टाइप्स की. वन इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, जिसमें एक पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन हम दिखाते हैं, एंड वन इज मार्केट सप्लाई कर्व, दैट अगेन टू, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड बट कंपैरेटिवली लिटिल बिट फ्लैटर, बिकॉज मार्केट कंटेन्स मेनी सेलर्स. कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ा सा शेप उसकी थोड़ी सी फ्लैट होती है, अदरवाइज पॉजिटिव स्लोप ही होती है. Then we did this, various factors are there which affect supply. Individual supply को affect करते हैं. Which are those factors? Price of the commodity, technique of production, price of factor inputs which are used for producing that commodity. Then goal of the firm, whether goal is sales maximization या profit maximization. Then future expectations regarding price. These are the broad these factors which affect individual supply. And market supply को कौन से factors affect करते हैं? One is this number of firms in the market. One is government policy. Government policy में tax की policy and subsidy की policy. ठीक है. उसके बाद जो rest of the points दिए हुए हैं, ये natural factors, means of transport, ये इतने important नहीं है. मतलब अगर आ जाए तो these should be avoided. ये सिंपल से पॉइंट्स हैं. मेन पॉइंट हमारा बनता है गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एंड सब्सिडी पॉलिसी, एंड अनदर इज नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म्स. और एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, इट वाज टोल्ड अर्लियर, ये मार्केट फैक्टर नहीं है, दिस इज इंडिविजुअल फैक्टर. ठीक है. इसको ऊपर ले आना है आपने. उसके बाद देन वी डिड लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, with a rise in price of the commodity, quantity supplied rises, and with a fall in the price of the commodity, quantity supplied falls. There is a direct or positive relationship between price and supply. Okay. And then we did this supply curve, again positively sloped supply curve. Here supply, quantity supplied here supply, here we show price, SS is supply curve. This shows the application of law of supply. Means on an average, in general, exceptions can always be there. जो economics का law है, ये कोई physical law नहीं होते हैं. Physical का मतलब कि जैसे हम बोलते हैं H2O, 2 हिस्से हाइड्रोजन है, एक हिस्सा ऑक्सीजन है, तो पानी ही बनेगा. एक फिजिकल लॉ है, मतलब वो यूनिवर्सल नियम है. सब जगह जाके ये इसी तरह से कॉम्बिनेशन कर लो तो ये वाटर की कंस्टिट्यूशन हो जाएगी. बट इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं वो उसका मतलब ये नहीं है कि एवरीवेयर एवरी टाइम वो सारा कुछ सेम टू सेम होगा. फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज बाउंड टू बी देयर.
ठीक है। तो कोई वो आगे हमने किया हुआ है एक्सेप्शन, जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हार्वेस्टिंग के टाइम पे ज़्यादा आ जाते हैं, फिर ये जो लॉ है वो काम नहीं करता है, या कोई पेरिशेबल चीज़ें हो तो कई बार ये काम नहीं करता है। तो एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए ऑन एन एवरेज इन जनरल ये लॉ इसी तरह से काम करता है फॉर ऑल द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है। उसके बाद हमने किया था दिस अनदर पॉइंट वाज लॉ ऑफ सप्लाई के बाद, हाँ, देन अनदर वाज चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है मूवमेंट along the same supply curve. That means if other factors remain constant, then only with the change in price the quantity supplied also changes, only with the change in price. तो नाउ दैट चेंज कैन गेट एग्जिबिटेड इन टू फॉर्म्स, या तो हो सकती है देयर कैन बी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और देयर कैन बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो एक्सटेंशन कब होती है, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, एक्सटेंड करना या एक्सपैंड करना मतलब बढ़ना। तो फिर क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट विद ए राइज इन प्राइस क्वांटिटी with the rise in price of the commodity, quantity supplied also rises, upward movement। ठीक है, upward movement ऊपर की ओर जाती है। On the other side contraction का मतलब with the fall in price quantity supplied also falls, backward या downward movement on the same supply का। तो अगर seller remains on the same supply का, ऊपर नीचे सिर्फ मूवमेंट होती है, दैट टू ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज, या तो प्राइस बढ़ता है या कम होता है, तो उसको कह दिया जाता है, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, या तो हम कहते हैं एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, या वी कैन से दिस मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई, या उसी को कह देते हैं चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड। बट ऑन द अदर साइड जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है दैट इज चेंजेस इन सप्लाई, उसमें आ जाता है शिफ्ट्स। शिफ्ट्स होती हैं जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं, बट अदर फैक्टर्स में चेंज आता है। अब वो कौन से अदर फैक्टर्स, नंबर ऑफ फर्म्स चेंज हो गई, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फैक्टर इनपुट्स का प्राइस चेंज हो गया, बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस। तो इफ अदर फैक्टर्स चेंज, तो उनके करके अगर सप्लाई चेंज होती है तो देन इट इज कॉल्ड चेंजेस या शिफ्ट्स इन सप्लाई का। वो भी आगे फिर टू पार्ट्स में सी चेंजेस वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि हर बार बढ़ना, चेंज का मतलब बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो इसी करके फिर दो पार्ट आगे किए जाते हैं, एक हो जाता है इंक्रीज, एक हो जाता है डिक्रीज। तो अगर तो इफ ऑल द फैक्टर्स रिमेन इन फेवर ऑफ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, किसी चीज के फेवर में सब बातें जाती हैं, तो देन देयर इज राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई का, rightward shifting, this will be called increase in supply. But on the other side, if all other factors which affect supply they go against this commodity, इसके विरुद्ध हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, इसके इस कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, अनफेवरेबल हो जाते हैं, देन देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई का। ठीक है। तो आपने याद रखना है बैकवर्ड शिफ्टिंग का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, पीछे की ओर होगी, और राइटवर्ड शिफ्टिंग का मतलब फर्दर, या राइटवर्ड तो राइटवर्ड ही रहेगा, इंक्रीज होता है राइटवर्ड, और लेफ्ट वर्ड का मतलब हो जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। तो एरोस आर टू बी पुट वेरी केयरफुली कि आपने शो जब करना है ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मान लो कि फैक्टर इनपुट्स का प्राइस हैज चेंज्ड, बताइए व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन सप्लाई। तो फिर आपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स आर टू बी मेड, डोंट राइट पैराग्राफ। आपने फिर लिखना है कि अगर फैक्टर इनपुट्स का प्राइस कम होता है तो देयर विल बी लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई विल बी मोर, देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्टिंग। यही बना ना, पढ़ के आए हैं। ठीक है। और अगर फैक्टर इनपुट्स का प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, तो देयर विल बी राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, खर्चा बढ़ जाएगा, देयर विल बी लेस सप्लाई, दैट मीन्स बैकवर्ड शिफ्टिंग इन द सप्लाई का हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग या बैकवर्ड शिफ्टिंग। ऐसे आपको जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो फैक्टर इनपुट का हो जाए, या चेंज इन टेक्नोलॉजी का हो जाए, या अपना फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस हो जाए, जितने भी फैक्टर्स हैं हर एक के साथ में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इसका सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक। उसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट, आई एम ब्रीफली समराइजिंग। उसके बाद था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट मीन्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू ए गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दैट मीन्स प्रपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके बाद फॉर्मूला एक ही है इसका, मेथड जो हमने करना है that is percentage method, या उसी को कह देते हैं proportionate method, that is equal to elasticity of supply is equal to delta Q by delta P into P by Q, same as done in case of ED, but यहाँ पर
टर्म्स का मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पर क्यू का मतलब सप्लाई, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड, ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक, उसके बाद एक हमने किया था, देयर आर 5 डिग्रीज परफेक्टली इलास्टिक। Perfectly elastic supply curve. With a slight change in price, supply falls to zero or becomes infinity. अगर प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है तो सेलर को लगता है कि बहुत प्राइस कम हो गया, वो बिल्कुल सप्लाई जीरो कर देता है। और अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है उसको लगता है बहुत फायदा हो गया, वो अनलिमिटेड एक्सटेंड कर देता है। If this type of change is seen, then it is called perfectly elastic supply. On the other side, अगर हम वर्टिकली लें तो दैट मीन्स राइज और फॉल इन प्राइस इज ब्रिंगिंग नो चेंज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। मैं एक ही डायग्राम में बना रही हूँ सारे। राइज और फॉल इन प्राइस डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई, वो उतनी की उतनी रहती है, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। और अगर होता है हमारा इस तरह से आता है, दैट मीन्स ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, then ES is equal to 1, ये है infinity, ये है equal to 0। अब अगर there is more percentage change in price but as a result there is less percentage change in supply, price ज़्यादा बढ़ा but change हुआ but supply कम change हुआ, then there will be less elastic supply। ES is less than 1, ठीक है। और अगर हो जाए कि प्राइस में कम चेंज हुआ बट एज ए रिजल्ट सप्लाई में ज्यादा चेंज आ गया, देन इट विल बी मोर इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। एक डायग्राम में नहीं बनाने, यू कैन मेक यूज ऑफ सेपरेट डायग्राम्स ऑल्सो, जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। मेन डिफरेंस एक और कर लेते हैं जो आ सकता है आपको। Can you observe any change in the elasticities of supply in these 3 diagrams? How can we express that? कैसे बता सकते हैं? इसको एक्सटेंड करके पता लगाया जा सकता है। अगर इसको एक्सटेंड करें एंड इट पासेस फ्रॉम y एक्सिस, दैट मींस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर इसको एक्सटेंड करें, इट पासेस फ्रॉम x एक्सिस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इसको एक्सटेंड करें एंड इट पासेस फ्रॉम ओरिजिन, दैट मींस इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो मेथड है ऑल दो सिलेबस में नहीं है, बट अगर हम डायग्राम की हेल्प से ऑब्जर्व करें तो दिस इज कॉल्ड, ये तीनों डायग्राम दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिक का मतलब डायग्रामेटिकली हमने बना के दिखाना है तो ये फॉर्म बन जाती है। अदरवाइज आपको ऐसे आएगा नहीं, आपको सिंपली आएगा ड्रॉ सप्लाई इफ, ड्रॉ ए डायग्राम इफ सप्लाई इज, आगे कुछ नाम दिया होगा, परफेक्टली इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ऐसे कुछ टर्म दिया होगा, आपने वो वाला डायग्राम बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। रेस्ट ऑफ द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो सिलेबस में नहीं है एज पर रिवाइज्ड सिलेबस। आगे इसमें बुक में दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो वो नहीं करने हैं, वो सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से, वो हमने नहीं किए हुए हैं। ठीक है, चलो अब आप अपने नोटबुक निकालिए, अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स और करके देख लेते हैं। Excuse me, ma'am. Yes, all the students, बेटे please take out your notebooks. राजदीप मैम, nobody is there. Nobody is there, ma'am. मैम राजदीप मैम, फिर आप ही कॉपी निकाल लो। कोई बच्चा नहीं है, मैडम सुन रहे हैं मेरा लेक्चर। हाँ, तो और क्या करूँ, मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ। चलो जी, फिर मैं क्लास वाले बच्चों को आपको ये एड्रेस करती हूँ। हाँ जी बेटे, प्लीज राइट डाउन एंड प्लीज डू ऑनेस्टली विदाउट कंसल्टिंग ईच अदर। ठीक, हिमांशु एंड केतन अपना अपना काम करना है। चलो प्लीज राइट, when the price of a commodity rises from rupees 10 to rupees 11 per unit, when price of a commodity rises from rupees 10 to rupees 11 per unit, comma, its quantity supplied
its quantity supplied rises by 100 units. Its quantity supplied rises by 100 units. Full stop. Its price elasticity of supply is equal to 2. Its price ES is equal to 2. TWO. Counting wala 2. Full stop. Calculate quantity supplied. Calculate quantity supplied at increased price. Calculate quantity supplied at increased price. इंक्रीज्ड प्राइस का मतलब जो नया प्राइस है जो बढ़ के 11 हो गया उस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी. नाउ प्लीज अप्लाई द फॉर्मूला ES इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल whenever you have to attempt question in paper, अगर ऐसा आ जाता है तो पहले लेफ्ट साइड पे फर्स्टली प्लीज राइट ऑल द थिंग्स व्हिच आर गिवन. यहाँ ऊपर आपको गिवन, ठीक है. फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिखो P इज इक्वल टू कितना आएगा 10, P1 इज इक्वल टू 11, डेल्टा P विल बी 11 माइनस 10 1, Q इज इक्वल टू Q कितना दिया हुआ है क्वांटिटी Q इज नॉट गिवन. ठीक है ना तो न्यू क्वांटिटी दिया हुआ है ना ही ओल्ड क्वांटिटी दिया है. ओनली दिस इज गिवन डेल्टा Q राइजेस बाय वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए. जब भी बाय वर्ड होता है साथ में तो उसका मतलब वो चेंज है. तो डेल्टा Q इज गिवन 100. ठीक. ES की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन. तो पहले इस साइड पे आपने सारी वैल्यूज लिख लेनी है फिर फॉर्मूला पुट करके करिए. हाँ जी आप बताइए कितना आया डेल्टा नहीं ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आई 500 और दूसरा क्या था सप्लाई राइजेस बाय 100 है मतलब डेल्टा Q हमें दिया हुआ है तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 प्लस 100 500 प्लस 100 600. ठीक है. कैसे पता चलेगा कि 100 प्लस ही करना है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है. ठीक. यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई को ध्यान में रखना है. अगर प्राइस बढ़ा है 10 की बजाय इंक्रीज होकर 11 हुआ है तो चेंज को ऐड कर देंगे. अगर रिवर्स होता फिर माइनस कर देना था. मतलब लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग फिर क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होनी चाहिए फिर माइनस कर देना. ठीक. वेरी राइट. इफ यू हैव गॉट 600 आंसर इट्स राइट आंसर. ओके नेक्स्ट देखिए price ES of a good is equal to 2. Price ES of a good is equal to 2 TWO2. A producer supplied 100 units of a good. A producer supplied 100 units of a good at a price of rupees 20 per unit. A producer supplied 100 units of a good at a price of rupees 20 per unit. Full stop. At what price he will supply 80 units? At what price he will supply 80 units? Means आपने न्यू प्राइस कैलकुलेट करना है. Done? हाँ जी कितना है चेंज इन प्राइस कितना है 2 और न्यू प्राइस 18. ठीक है. डेल्टा P आ गया 2 और उसके बाद पता कैसे चलेगा कि न्यू प्राइस पहले से कम होगा. तो आपने हिंट देखना है दैट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. पहले सप्लाई है 100 यूनिट्स की और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 80 यूनिट्स बेचेगा.
तो सप्लाई तब होती है जब प्राइस भी कम हुआ हो, तो 20 में से 2 माइनस कर देने हैं। ठीक, चलिए अब एक लिखिए, डिफरेंट है थोड़ा सा। वन टेबल इज गिवन, प्लीज मेक 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में लिखिए प्राइस पर यूनिट, इधर प्राइस पर यूनिट, इधर क्या हुआ PR। ठीक है, प्राइस के नीचे 4 5 and total revenue, TR means total revenue, that is 800 and 1200. Find price ES या calculate price ES. Okay. Now you have to be careful, it is not quantity supplied, it is total revenue. तो total revenue का formula क्या होता है, price into quantity, price per unit into quantity sold. So if we divide this column, these values, with the help of corresponding price, we will get another column that will be quantity. ठीक, जल्दबाजी में नहीं करना कि ये क्वांटिटी है तो इसको करेंगे, then your answer will be wrong. 800 divided by 4, तो आपकी पहली क्वांटिटी हो जाएगी 200. फिर 1200 divided by 5 कितना आएगा, 240. 240 will be your new quantity. ठीक, उसके बाद यू कैन कैलकुलेट डेल्टा पी, डेल्टा क्यू। डेल्टा पी हो जाएगा 1, 5 - 4 1, और डेल्टा क्यू हो जाएगा कितना, 40, 240 - 2। हाँ जी, कितना आया बेटे, 4/5, पॉइंट में निकाल लीजिए इसको, पॉइंट में लेके आना, 0.8। ठीक है, 0.8 इज द आंसर। अच्छा, अगर आपको इसी के आगे पूछा जाए कि what is the nature of this coefficient, what is the nature या how will you interpret this elasticity, तो आप क्या बोलेंगे? yes, 1 से कम है आंसर, 0.8 1 से कम है, तो आप लिखोगे this elasticity, this the supply of this commodity is less elastic। लिख लो, कई बार आ सकते हैं, the supply of this commodity is less elastic। अगर आंसर बाई चांस 1 आए तो आप लिखेंगे सप्लाई ऑफ दिस कमोडिटी इज यूनिटरी इलास्टिक। अगर 1 से ज्यादा है, सप्लाई इज मोर इलास्टिक। ठीक है, ओके। चलिए एक और थोड़ा सा डिफरेंट इसी टाइप का है, डिफरेंट तो नहीं है। हाँ जी, प्लीज राइट डाउन, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹10 per unit, price of a commodity is ₹10 per unit, and total revenue from it is ₹1000, and total revenue from it is ₹1000, full stop. Its price elasticity of supply is 0.8. Price ES is given 0.8, full stop. Its price falls by 10%. Its price, its मतलब उस चीज का प्राइस, falls by 10%. Calculate total revenue at the reduced price. Calculate total revenue at the reduced price. ठीक है, पहले तो आप लिख लो, दिया क्या हुआ है हमें, प्राइस P is 10, फिर टोटल रेवेन्यू दिया है 1000, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी TR डिवाइडेड बाय P, 1000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 100। एक हिस्सा हो गया, एक चीज हो गई, 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद ES पहले दिया हुआ है 0.8, उसके बाद दिया हुआ है प्राइस फॉल्स बाय 10%, मतलब वी आर नॉट गिवन न्यू प्राइस प्रॉपरली, ये दे दिया उसकी जगह पे कि प्राइस कम 10% कम हो गया, तो इसका मतलब न्यू प्राइस कितना होगा, पुराने प्राइस में से उसका 10% माइनस कर दें, मतलब आप लिखोगे 10 - 10 का 10%। ठीक है, कितना हो गया ये, फॉल इन प्राइस कितनी आ जाएगी फिर, 1, 1 रुपया कम हुआ, और न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 9, 10 में से 1 माइनस कर दें 9। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हमें, उसके बाद आप निकाल लो ES का फॉर्मूला लगा के, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सिर्फ आपको मिल जाएगा एक
न्यू सप्लाई आ जाएगी, कितना आया 92। हाँ नहीं, वो तो टीआर आ गया ना, वैसे पहले 92, ठीक है ना। न्यू सप्लाई 92 आ गई, ठीक। उसके बाद हमें पूछा है कि न्यू टीआर बताइए, तो टीआर का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड, तो ये हो जाएगा 92 इंटू 90, नया प्राइस है जो, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ₹828। मुश्किल नहीं है, हमें थोड़ा सा उसी बात को घुमा फिरा के पूछा हुआ है, आपने प्रॉपर फॉर्मूला ही चलाना है, उसी से आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाएगा, ठीक है। राजदीप मैम, यू कैन एंड द मीटिंग, जो क्लास में है मैं उन्हीं को करवा देती हूँ, नो प्रॉब्लम, ओके मैम, ओके। है ना। आप फिर खाली बैठे हुए, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। रिकॉर्डिंग ओके, वाला थैंक यू जितना था भैया। मेन मैंने करवा दिया, वैसे ही प्रैक्टिस ही करवानी है, यू कैन एंड। ओके, थैंक यू।